غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فن سپاہ گیری میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤ الدین نے اپنا تمام وقت علوم دنیا کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤ الدین نے اس سے انکار کر دیا اور اورحان غازی کے اصرار پر صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کے بعد سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصطلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہی۔ ارطغرل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بے شک یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہسوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤ الدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ ان پیادوں کی تنخواہیں بہت ہی زیادہ تھیں، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہو پائے تھے کہ ان پیادوں میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور ان کی سرکشی خود اورحان غازی کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان غازی نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے علاؤ الدین اور کارا خلیل سے مشورہ کیا۔ کارا خلیل جو بعد میں خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار کو ایک سیلاب کی قوت عطا کی۔ کارا خلیل نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ عیسائی جنگی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ اورحان غازی کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور انہوں نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کر دی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے چنے جاتے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قیدی ہوئے تھے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے یہ کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا۔ اس کے بعد انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا نام
येनिकिरी यानी नई फौज था। सल्तनत उस्मानिया की इब्तदाई 3 सदियों में जो इसके अरूजो तरक्की का जमाना था, येनिकिरी की कुव्वत ओज शबाब पर थी। ओरेहान गाजी ने तख्त नशीन होने के बाद अपनी हुकूमत के पहले ही साल नाइकोमीडिया पर कब्जा कर लिया। ब्रोसा शहर चंद महीने पहले ही वो फतह कर चुके थे। बाज़ंतीनी सल्तनत के एशियाई मकबूजात में से अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया रह गया था, जो बाज़ंतीनियों के लिए बहुत ही अहम शहर था। ओरेहान गाजी ने इसका भी मुहासरा कर लिया और 1330 ईस्वी में इसे भी फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। 1333 ईस्वी में रियासत कराची के अमीर का इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के बाद इसके बेटों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस खाना जंगी का फायदा उठाते हुए ओरेहान गाजी ने कराची पर हमला किया और इसको भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इसके बाद ओरेहान गाजी ने अनातोलिया के शमाल मगरबी गोशे की चंद छोटी छोटी तुर्की रियासतों पर हमले किए और इन्हें भी अपने मकबूजात में शामिल कर लिया। कराची और दूसरी तुर्की रियासतों की आबादी ज्यादातर तुर्कों पर मुश्तमिल थी, लेकिन साहिली इलाकों में एक खासी तादाद यूनानियों की भी थी, जिन्होंने ब्रूसा और नाइसिया के अक्सर बशिंदों की तरह इस्लाम कबूल कर लिया। इन फतुहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई और ओरेहान गाजी पूरी तवज्जो के साथ मुल्की और फौजी आइन की तंजीम और तकमील में मसरूफ रहे। उन्होंने तमाम मुल्क में अमनो अमान कायम किया और मस्जिदें, मदरसे और रफाहे आमा की मुख्तलिफ शानदार इमारतें तामीर करवाईं। ब्रूसा में एक निहायत ही आलीशान मस्जिद, एक बहुत बड़ा मदरसा और एक शाही हस्पताल तामीर करवाए। सल्तनत के अंदरूनी इंतजामात से फारग होकर ओरेहान गाजी यूरोप की जानब मुतवज्जे हुए और इनकी जिंदगी के आखिरी चंद साल बाज़ंतीनी सल्तनत के यूरोपीय इलाकों में कदम जमाने की कोशिश में सरफ हो गए। बाज़ंतीनी सल्तनत इस वक्त बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसके मकबूजात जो सदियों तक यूरोप में दरियाए डन्यूब और एशिया में अनातोलिया और शाम तक फैले हुए थे, अब सिर्फ चंद शहरों तक महदूद रह गए थे। एशियाई मकबूजात तकरीबन तमाम के तमाम उस्मानियों ने अपने कब्जे में ले लिए थे और यूरोप में भी सर्बिया का बा-इक़्तिदार फरमानवा स्टेफन जजीरा नुमा बल्कान के निसफ से ज्यादा इलाके पर अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदरूनी मामलात और खाना जंगियों ने इसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। 1341 ईस्वी में जब शहनशाह कुस्तुनतुनिया एंड्रोनोक सोम का इंतकाल हुआ, तो कुस्तुनतुनिया के तख्त पर इसकी मलका ऐना और इसका नाबालग बेटा जोन पंजम बैठे। कैंटाकोजीन इसके बेटे का वाली था, मगर कुछ अरसे के बाद कैंटाकोजीन ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। ये बात मलका ऐना को बहुत ही नागवार गुजरी और इन दोनों में खाना जंगी शुरू हो गई। इस खाना जंगी में तख्त हासिल करने के लिए कैंटाकोजीन और मलका ऐना दोनों ने ही ओरेहान गाजी से मदद मांगी, लेकिन ओरेहान गाजी ने कैंटाकोजीन की मदद की और अपने 6000 तुर्क सिपाही इसकी मदद के लिए भेज दिए। कैंटाकोजीन ने तुर्कों की मदद से कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और 1 साल बाद कुस्तुनतुनिया में फातिहाना तौर पर दाखिल हुआ। मलका ऐना को मजबूरन कैंटाकोजीन से सुलह करनी पड़ी और सुलह इस तरह तय पाई कि कैंटाकोजीन और उसकी बीवी और दूसरी तरफ मलका ऐना और उसका बेटा चारों ही मुश्तरका तौर पर तख्त नशीन हुए। कैंटाकोजीन ने मलका ऐना के साथ इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए अपनी एक बेटी का रिश्ता उसके बेटे जोन पंजम को दे दिया और तुर्कों के साथ इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए अपनी एक बेटी का रिश्ता ओरेहान गाजी को दे दिया। 1349 ईस्वी में सर्बिया के बादशाह स्टेफन ने सलोनिका पर हमला कर दिया। सलोनिका पर कब्जा करने के बाद वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करना चाहता था और उसे ये यकीन था कि इस नाजुक मौके पर कैंटाकोजीन और मलका ऐना तुर्कों से मदद मांगेंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ और कैंटाकोजीन और मलका ऐना ने ओरेहान गाजी से मदद मांगी।
इस मर्तबा उरेहान गाजी ने 20,000 सिपाही रवाना किए, जिनकी मदद से सलोनिका में स्टेफन को शिकस्त हुई और कुस्तुनतुनिया की फतह का ख्याल जो इसके दिल में बार बार पैदा होता था, अब की बार हमेशा के लिए खत्म हो गया। स्टेफन को शिकस्त देने के बाद उस्मानी सिपाही वापस बुला लिए गए, मगर 4 साल के बाद उरेहान गाजी को अपनी फौजें अब नाए बास्फोरस के मगरबी साहिल पर भेजने का एक और मौका मिल गया, जो यूरोप में उस्मानियों के कदम जमाने का सबब साबित हुआ। वो इस तरह के कैंटाकुजीन तख्तो ताज में ज्यादा देर तक मलका एन्ना और उसके बेटे जॉन पंजम को बर्दाश्त न कर सका और 1353 ईस्वी में उसने हुकूमत के तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेने चाहिए, लेकिन जॉन पंजम की शदीद मुखालफत की वजह से खाना जंगी शुरू हो गई। कैंटाकुजीन ने हस्बे दस्तूर उरेहान गाजी से फिर मदद मांगी और इसके मुआवजे में यूरोपी साहिल पर एक किले की पेशकश की। उरेहान गाजी ने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा की सरकर्दगी में 20,000 सिपाही रवाना किए, जिनकी मदद से कैंटाकुजीन ने जॉन पंजम को शिकस्त दी और कुस्तुनतुनिया के तख्त पर कब्जा जमा लिया। सुलेमान पाशा ने हस्बे मुआहिदा किला तज़ीम पर कब्जा करके उस्मानी दस्ते मुतय्यन कर दिए। इसके चंद ही दिनों बाद थ्रेस में ज़ल्ज़ला आया, जिससे बहुत सारे शहरों को नुकसान हुआ और उनकी दीवारें गिर गईं। इस मौके से फायदा उठाकर सुलेमान पाशा ने आगे बढ़कर गेलीपोली के किले पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने थ्रेस के चंद मकामात और फतह किए और बहुत से तुर्कों और अरबों को लाकर इन मकबूजात में आबाद कर दिया। गेलीपोली की फतह से तुर्कों की तारीख का एक नया दौर शुरू हुआ। 1353 ईस्वी में उन्होंने पहली बार फातेह की हैसियत से यूरोप में कदम रखा और मसीही यूरोप में एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत की बुनियाद डाली, जो 2 सदियों के अंदर अंदर गेलीपोली से वियना की दीवारों तक फैल गई। इन वाकयात से कैंटाकुजीन के खिलाफ कुस्तुनतुनिया में सख्त बरहमी फैली, जिसने बगावत और इनकलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। हर कोई कैंटाकुजीन पर गद्दारी वतन का इल्जाम आयद करता था और इसी को तुर्कों को यूरोप में लाने का जिम्मेदार ठहराता था। आखिर राय आमा से मजबूर होकर इसे तख्तो ताज से दस्तबरदार होना पड़ा और इसके बाद जॉन पंजम तख्त नशीन हुआ। जॉन पंजम ने 50 साल तक हुकूमत की, लेकिन इस तवील मुद्दत में बाज़ंतीनी सल्तनत की हालत रोज बरोज खराब होती चली गई और तुर्कों का तसल्लुत बढ़ता ही गया। जॉन पंजम के तख्त नशीन होने के बाद भी तुर्कों ने अपनी फतुहात का सिलसिला जारी रखा और बाज़ंतीनियों से कई किले छीन लिए। आखिरकार शहनशाह कुस्तुनतुनिया को मजबूरन उरेहान गाजी से सुलह करके इन तमाम मकबूजात को तस्लीम करना पड़ा। इसके बाद बाज़ंतीनी सल्तनत गोया दौलत उस्मानिया की एक बाजगुजार हुकूमत बनकर रह गई। उरेहान गाजी ने तकरीबन 33 साल हुकूमत की। उनके दौरे हुकूमत में उस्मानी मकबूजात को बहुत ज्यादा वुसअत मिली। उन्होंने न सिर्फ एशियाई कूचे के बकिया बाज़ंतीनी इलाके फतह किए, बल्कि बाद तुर्की रियासतों को भी उस्मानिया सल्तनत में शामिल किया। उन्होंने यूरोप में दाखिल होकर थ्रेस का एक हिस्सा भी फतह कर लिया, जो इस बर्रे आज़म में उस्मानी फतुहात का शानदार आगाज था। जिन फौजी और मुल्की आइन पर सल्तनत उस्मानिया की अजमत कायम हुई, उसकी बुनियाद इन्होंने अपने हाथों से रखी थी। उस्मान गाजी की हैसियत एक अमीर से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उरेहान गाजी के कारनामों ने इसे बादशाही का हकदार साबित कर दिया था। 1358 ईस्वी में उरेहान गाजी का बेटा सुलेमान पाशा शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरा और वफात पा गया। सुलेमान पाशा उरेहान गाजी का जानशीन भी था और वो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उरेहान गाजी सुलेमान पाशा की वफात का सदमा बर्दाश्त ना कर सके और दूसरे ही साल इंतकाल कर गए।